everybody, this is Shivangi, and I welcome you today with immense joy and pride introducing to you rank 13 Jaideep. Hello, Jaideep. Very, very welcome, of course, and more than welcome. Very, very congratulations to you. How are you feeling? Thank you so much, ma'am. Feeling for first 10 minutes when I got the result, I was basically going to see one of my PG because I'm working in Supreme Court, so I came back here. When the Mhm. result came, I left PG and I was just with my friends and saw the result. And all my friends took me directly to the bakery shop because it was just near. So we just went, we celebrated. It took time to sink in, but yes, I expected it because I had your belief in me, myself, and the universe was also believing in me, I guess. So something better happened. Of course, more than you, of course, we were also. हम भी बहुत श्योर थे कि जयदीप का नाम तो हमें उस लिस्ट में दिखेगा ही दिखेगा. एंड पता नहीं कैसे व्हाट हैपेंड, मैंने जब लिस्ट खोली तो मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया और फर्स्ट नाम मुझे वही पहले पेपर पे आपका दिखा ना. वो सो हैप्पी, जंपिंग विद जॉय कि चलो जयदीप गॉट सिलेक्टेड. ऑफ कोर्स बाकी सब भी सिलेक्ट हुए, बट पहला नाम मुझे आपका दिखा. सो जयदीप, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. थोड़ा सा कब सोचा प्रिपेयर करना है? हमेशा या तो एक होता है कि एक मोमेंट है कि हमें बस जज बनना है, या फिर स्लो रियलाइजेशन था कि हाँ शायद जुडिशरी भी कर सकते हैं. सो व्हाट वाज इट फॉर यू? So I would say law में मेरा entry itself it was a grace because first generation lawyer I was. So I was not having anybody who was backing कि इस field में जाना चाहिए. I joined law ये सोच के कि I would be joining civil services. God's grace I was good in studies. But then once I started law, I realized कि civil service obviously definitely in its own spare वो बहुत अच्छा है. But then if you are studying law, how you are using law, what is happening with law, apart Right. from giving authority to you, it gives you so much strength and empowerment to do something good if your vision is good, if you want to do something good. So in that sense I started participating in moot court research papers, बहुत बहुत सारे एग्जाम्स एंड ऑल. एंड देन फिफ्थ ईयर फोर्थ ईयर तक डिसाइड कर लिया था कि अब तो जुडिशरी करेंगे. एंड फर्स्ट अटेम्प्ट था, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का भी प्रीलिम्स दिया था, गुजरात जुडिशियल सर्विसेज का भी प्रीलिम्स दिया था. अब वो कोइंसिडेंस बोलो या क्या बोलो कि दोनों का मेंस एक ही दिन था. But then, because Gujarat was my home state, and definitely whatever till now it has been given to me by my post graduation university, undergraduation university. So I always wanted, or parents most importantly उनके लिए. So I always wanted to stay गुजरात में. So that was one of the reason कि judiciary के preparation तो कर ही रहे थे. But GJS obviously was one of the target, and it was God's grace कि first attempt, first target, and everything is through. करेक्ट. एंड ऑल्सो हार्ड वर्क. बहुत लोग पूछते हैं कि मैम क्या सिर्फ किसी और चीज के साथ में हम प्रिपेयर कर सकते हैं क्या? तो आई ऑलवेज गिव योर एग्जाम्पल कि हम डेफिनेटली किसी और चीज के साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर हमें सही में बनना है तो वी कैन डेफिनेटली टेक आउट टाइम, राइट? सो थोड़ा सा बताओ सारे एस्पिरेंट्स को, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस, फॉर इंटरव्यू? अलग अलग स्ट्रैटेजी थी क्योंकि गुजरात कहते हैं कंपैरेटिवली इजी एग्जाम है, बट क्योंकि सिलेक्शन रेट थोड़ा सा कम है ना? तो उसमें आपने कैसे प्रिपेयर किया? मैम द मेन चीज ये है, मुझे ऐसा लगता है कि वेन यू आर इन टू समथिंग, इफ यू आर इन टू समथिंग होल हार्टेडली, इट विल वर्क. बिकॉज कंसिस्टेंसी होता है जो आपको खींच के लेके जाती है. सो व्हेन पीपल आर डूइंग LLB, LLM, वी हैव सच अ फील्ड कि कोई भी एस्पेक्ट आप चूज कर रहे हो, वेदर जुडिशरी, वेदर एडवोकेसी, वेदर प्रोफेसरशिप, you need to read continuously. Some or the other way, you need to be updated with what is happening around us and everything. So definitely judiciary was the target. But then judiciary के बहुत सारे aspect थे. At present, before this, I'm working as a law clerk at Supreme Court of India. So I was preparing for that exam. I was doing my masters. I was practicing the bits and parts in which it was possible for me to do so, because I wanted to understand कि सारे facets कैसे चलते हैं. And that can only be done when you are actively involving yourself in all of those things. And ultimately, master आप तब बन जाते हो जब आप उस फील्ड में घुस जाओगे. And there are so many things, complexity सीखने के लिए you will get time. But it is well said, the jack of all and master of none is very necessary. क्योंकि अगर आपको कोई भी पर्सपेक्टिव से, बाहर से, बेंच से, टीचिंग प्रोफेशन से या कोई भी प्रोफेसर से अगर आपको सीखना है कुछ, तो उसके लिए आपको उस शूज में होना जरूरी है, सो दैट यू कैन राइट. अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग. करेक्ट. सो आई करेक्ट. बिलीव कंसिस्टेंसी था. LLB में भी पढ़ते थे बढ़िया से, LLM में भी बढ़िया से पढ़ा था. एंड वन अदर थिंग विच आई थिंक इज, जैसे आपने भी सिखाया वो चीज कि डू व्हाट इज नीडेड. सो अगर मैं कोई पेपर पैटर्न पकड़ रहा हूँ, उस पैटर्न में अगर उतना मैं कर रहा हूँ जितना उसमें जरूरत है, कोई नहीं रोक सकता आपको. दैट इज व्हाट आई बिलीव. ये समझना और जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में पढ़ना कितना है. तो हमें एग्जैक्टली. इसमें पीएचडी नहीं करनी, इज व्हाट आई यूज्ड टू से टू एवरीबॉडी एंड स्पेशली यू. क्योंकि हम शायद पीएचडी भी कर रहे हैं, हमने एलएलएम यस. भी करा है, तो हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, तो शायद हम सारा ही उस पेपर में लिख दे.
बट उससे हम जज नहीं बन पाते, राइट? तो Right. हमें जहाँ पे जितना चाहिए होता है उतना ही हमें करना होता है, वही हम सिखाते हैं, और राइटफुली आपने सीखा भी है वो। ऑल्सो वन थिंग अबाउट जयदीप इज विच आई कैन से इज मेंस प्रैक्टिस, राइट? जितने भी हमारे मॉक्स हुए हैं वो सारे आपने लिखे हैं, सारे बाकी स्टूडेंट्स ने भी बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन से लिखे हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट, कितने इंपॉर्टेंट मॉक्स हैं या कितने इंपॉर्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस है इन क्रैकिंग एनी जुडिशियल सर्विसेज पेपर? सो मैम इट इज आई विल ड्रॉ अ वेरी गुड एनालॉजी, मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है ना, कि एलएलबी से आप बेटर थे एलएलएम में, व्हेन आई केम टू सुप्रीम कोर्ट आई वाज बेटर, एंड आई होप व्हेन आई विल बी जॉइनिंग जुडिशियल एकेडमी तो मेरे कलीग्स, मेरे जो भी प्रोफेसर होंगे, जजेस जो पढ़ाएंगे, उनको मैं और बेटर वर्जन दिखाऊंगा। सेम मॉक इज डूइंग द सेम थिंग इन योर लाइफ। सो यू आर जस्ट राइटिंग वन पेपर, देन आप चेक करके दे रहे हो, आपके फैकल्टीज चेक करके दे रहे हैं। व्हेन यू राइट द सेकंड पेपर यू अंडरस्टैंड, अच्छा ठीक है ये इससे बेटर है, थर्ड विल बी मोर बेटर, फोर्थ विल बी मोर बेटर। तो मॉक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इट इज नॉट मोर अबाउट टेस्टिंग यू, इट इज मोर अबाउट पॉलिशिंग यू, कि राइट। कितना बढ़िया आप लिखते जाओगे। और डेफिनेटली फाइनल पेपर वो सबसे बेहतर था, बिकॉज और दैट इज सबसे व्हाट इट इज। यस, और सबसे बढ़िया बात जो आपको फीडबैक मिल रहा है कि इसमें ये नहीं ये करना है, उसे इम्प्लीमेंट करना। आई स्टिल रिमेम्बर एक क्वेश्चन करा था अपन ने सेल और अग्रीमेंट टू सेल में, राइट? यस यू ऑल रोट टीपीए के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, पर मैंने बोला नहीं ये नहीं करना है। तो एंड सरप्राइजिंगली दैट क्वेश्चन ऑल्सो came right in the यस, paper. इट वाज So देयर, yes, यस, it came in the paper and इट you केम। and I believe Dhumil and everybody told me कि मैम ये तो पेपर में आ गया जो आपने कहा था कि इसमें टीपीए नहीं लिखना है। तो that was also a very very good part। तो बहुत अच्छी बात है, एंड ऑफ कोर्स हार्ड वर्क जो बहुत कंसिस्टेंसी आपने रखी है। यस मैं लास्ट क्वेश्चन टू यू जयदीप इज कि जैसे अभी 3 साल का रूल लग गया है, राइट, गैप आ गया है। सो फॉर ऑल दोज हु वर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी बट नाउ, क्योंकि अब ऑफ कोर्स पेपर देने में समय है, सो व्हाट आर यू गोइंग टू सजेस्ट देम कि क्या उन्हें कंटिन्यू करनी चाहिए प्रेपरेशन, या गिव अप कर देना चाहिए, या कुछ और करते हुए साथ में बैलेंस करके पढ़ाई करनी चाहिए? सो मैम आई वुड जस्ट स्टार्ट ये वाला चीज से, व्हेन यू पुट वैल्यू इन समथिंग इट इज वर्थ अ ट्राई, बिकॉज एज आई सेड, हम पहले भी बोले कि 100% को कर, इट्स एन एक्सपीरियंस। आई डिड 100% एलएलएम, 100% सुप्रीम कोर्ट, 100% दिस ऑल हैपेंड नॉट बिकॉज ऑब्वियसली ग्रेज वर्क्स, other stakeholders also works, but then your work is much needed। 3 years रूल के लिए, नो मैटर वॉट एवर फ्यूचर में रिव्यू पिटिशन में जो भी डिसीजन आएगा, दैट इज नॉट आर कंसर्न, दैट इज नॉट इन आर कंट्रोल। You can see, you can understand that how the legal interpretation is done, and they are also doing it because they are also thinking the betterment of a whole judicial system as a whole. So everybody is right on their own point. What we need to understand is कि प्रिपरेशन, अगर आपको वैल्यू है उस पोजीशन का, उस चीज का कि यू नीड इट, यू विल डेफिनेटली वर्क हार्ड फॉर इट। एंड नाउ आवर फील्ड इज सो वास्ट, वी हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। इफ यू सी, लीगल असिस्टेंट होते हैं हाई कोर्ट्स में, लॉ क्लर्क्स है सुप्रीम कोर्ट में, दीज एग्जाम्स आर ऑल्सो प्रेस्टिजियस एग्जाम्स की, जिस बिकॉज अल्टीमेटली यू आर स्टडिंग लॉ, द मेजर लॉज आर ऑल सेम। तो आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो जुडिशरी के लिए, डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू। और ये है कि दिस इज ऑल्सो काउंटेड इन प्रैक्टिस। तो इतना तो इट इज वेरी क्लियर दैट देर आर सर्टेन एग्जाम्स, देर आर सर्टेन थिंग्स you do which will be counted as practice. For first generation lawyers I would suggest it is a very good opportunity, because you might feel that practicing is a emotionally करेक्ट। resilient job। तो it's better कि आप ऐसे जगह पे you give your best, and definitely you will get it। even if you are not getting it, what my suggestion is, practice कीजिए, and हाथों हाथ you study, because राइट। ultimately you are reading judgments, you are doing everything। एंड एनीवे इट टेक्स लाइक 12 to 15 months टू प्रिपेयर ऑल्सो। ये भी एक बात है Definitely, कि ऐसा नहीं होता है कि हमने पहला एग्जाम दिया और हमारा लग गया। तो हमें वैसे भी इन एनी केस पढ़ाई तो करनी पड़ती है, तो हम भी ये कहते हैं कि साइड में प्रैक्टिस करो, बट डोंट, इफ यू रियली वांट टू बिकम अ जज ऑफ कोर्स, अगर बनना है तो यू शुड डेफिनेटली गिव अ ट्राई। Right, definitely Jaydeep? worthwhile, ma'am. Yes, Right. ma'am. It was great having you in our batches. Great teaching you. I had a lot of fun. We all had a lot of fun. The whole team of Lopere. We all are very, very elated also. And wishing you all the very best onwards and upwards always. Thank you so much. Definitely, अगर मौका मिला तो हम सब मिलेंगे भी. Right? Thank you. Thank you so much. Thank Thank you. Big thank you to you, to Swati ma'am, to entire Law Prep technical team and everybody for giving the minute support which has also contributed to this entire thing. right, Thank you right, so right. much. Thank you so much, Jaydeep. All the very best. Thank you.